Aja, please. This is our third lecture, Advanced Network Security. इसमें हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ अच्छा, प्रीवियस क्लास को हम अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लें या देख लें तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी वो हम कंसिडर करते हैं बाय कन्वेंशन कि जिसमें कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया गया और बिफोर द क्रिएशन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि 5000 ईयर्स की हिस्ट्री है क्रिप्टोग्राफी की, तो ज़ाहिर है कि अब उस ज़माने में तो कंप्यूटर नहीं था, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी। तो उसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, हमने उसके 2-3 एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट भी किया था। मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया और वो आप देख लें। फिर इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के पैरामीटर्स कि किस तरह की क्रिप्टोग्राफी है और क्यों हम मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की तरफ जाते हैं। तो एक जो डिसएडवांटेज था क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में वो ये था कि उस ज़माने में चूँकि कंप्यूटर नहीं थे और ह्यूमन हैंड एप्लीकेशन या नॉलेजेस के बेस के ऊपर उसका क्रिप्ट एनालिसिस होता और ब्रेक करते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास टिक टाक डिवाइसेस आ गए हैं और हाई स्पीड कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो अगर हम उस पर क्रिप्टोनालिटिक अप्रोचेस को अप्लाई करें तो बहुत आराम से वो ब्रेक हो सकती है। तो इस वजह से फिर हम एडवांस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफीज हैं: the symmetric key cryptography, the asymmetric key cryptography, and the hash functions. Now let's look what are these 3 types of the cryptographies are. अगर बीच में कोई मसला है तो साथ साथ में आप मुझे बताते जाएं। मैंने ग्रुप को ओपन रखा है, कोई भी बंदा किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली फिर बोलूँगा और अगर आपको नहीं समझ आती तो साथ साथ में फिर आप मुझे बताते जाएं, ठीक है। Now let's see that there are the 3 types of the cryptography: symmetric key cryptography, the asymmetric cryptography, and the hash function. So what is the symmetric key cryptography or the rest of the two? So look into this diagram. The first one, A. Symmetric cryptography uses a single key password both for encryption. So you can see over here the plain text is taken and we apply a password and convert it to the ciphertext. And looking to the color and shape of the key, the same key is used to decrypt it to get the plain text back. So symmetric means same. The encryption key and the decryption keys both are same. Then it is called popular and historical cryptographic technique. In MS Word, you can use the password to encrypt your MS Word file. Similarly, you are connecting cryptography is algorithms like SQL Server, MySQL, Lotus Notes, SAP, etc. The DBMSs are using the symmetric key cryptography. And even if you are logging into the websites, you are logging through the symmetric key cryptography, because the same key that you are connected is
if known by the service provider, can look into your entire documents what are stored on a website. No. Let's come to the second one, the public key cryptography or asymmetric key cryptography. So in this cryptography, looking to the diagram, you convert a plain text to the ciphertext using a password, and then the ciphertext back to the plain text using the password. But looking to the color of the keys, both is changed. Other than this, looking to the shape of the keys, both is changed. So in asymmetric means that different. Asymmetric. Symmetry means the same, and asymmetric means different. So two different keys are used, one for the encryption and the other for the decryption. And it is not possible to decrypt some document with the key with which it has been encrypted. So it was a revolution in the history of the cryptography, because till the invention of the public key cryptography, only the symmetric key cryptography was the approach that was used for the purpose. And look into the asymmetric key cryptography. जी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आपको सही आ रही है? So the third one is the hash function. जी आवाज आ रही है? एक मिनट, ये कह रहे हैं कि ये ब्राउज़र और ये काम नहीं कर रहा, तो चलो मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ कि क्या मसला है इसमें। जी आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, असल में मैं तो कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आ रही है चीज़ें, लेकिन ये है कि चूँकि स्क्रीन मैंने ओपन किया हुआ है तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा आपके जो कंटेंट्स वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन को मैं दोबारा से एंटायर स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो स्लाइड्स हैं अब ये भी आपको ये स्लाइड नज़र आ रही हैं अब आपको? जी अच्छा, तो अच्छा, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की तो समझ आ गई। सिमेट्रिक में क्या होगा? द सेम कीज आर यूज बोथ फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, and in asymmetric key cryptography different keys are used for the encryption and decryption. Third one is the hash function.
That is also called a one-way cryptography, uh, in which we are encrypting a document without any password, and it is not possible to convert this ciphertext back to the plain text. Clear? So in hash function, it is also called one-way cryptography that doesn't use any of the password. And when a ciphertext is made, then it is not possible to convert this ciphertext back to the plain text. What is its use? We will discuss this inshallah at its time. But these are the three types of the cryptographies: the symmetric key cryptography, the asymmetric key cryptography, and the hash function. Clear? Now let's जी इधर तेज बोले, आवाज बड़ी स्लो आ रही है बेटा जी. आवाज नहीं आ रही है आपकी. है तो आप कोई टेक्स्ट कर देना. यहाँ पर देखिए मैंने टेक्स्ट को ऑन किए हुए, तो आप टेक्स्ट कर देना. मैं ये जो है रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दूं, क्योंकि आवाज़ आपकी मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही. जी, आप यहाँ पर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना. ये मैंने सही. नो, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक एनक्रिप्शन जो मैंने डिस्कस किया, इसके मुख्तलिफ नाम है: कन्वेंशनल एनक्रिप्शन, प्राइवेट की और सिंगल की क्रिप्टोग्राफी, सेंडर एंड रिसिपिएंट शेयर अ कॉमन की. जब ये कम्युनिकेशन होगा तो सेंडर और रिसीवर सबसे पहले क्या करेंगे? एक पासवर्ड को आपस में शेयर करेंगे, और जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो सेम पासवर्ड फिर यूज़ होगा इनक्रिप्शन पर्पस के लिए और डिक्रिप्शन पर्पस के लिए. ठीक. अच्छा प्लीज़ ये सही इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर्पस के लिए. मैंने जिस तरह आपसे कह दिया, ऑल द क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी वाज बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक. यही टेक्निक जो है सारे इस्तेमाल करते रहे हैं. तो कंप्यूटर टिल 1970s, अगर यहाँ पर देखें ये मेंशन है, तकरीबन 73-74 तक this symmetric encryption was the only approach in the cryptography. Still it is used, no doubt. All MS Office, DBMSs, and even the web servers still are using this symmetric key cryptography. अच्छा, अब यहाँ पर इसको वही चीज़ है दोबारा से डिस्कस किया गया है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? द प्लेन टेक्स्ट इनपुट, द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, कोई भी आपने लिया. अब देखिए पासवर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया, अब ये डेटा ट्रांसमिशन हो गई, एंड एट द रिसीवर साइड व्हेन इट इज टेकन द सेम पासवर्ड इज यूज्ड बैक टू गेट द प्लेन टेक्स्ट बैक. ठीक. So the plain text is converted to the ciphertext using the key and
the password, the key and the algorithm, and at the receiving side again the same key and the same algorithm are used to get the plain text back. Now look at over here, the same thing is written in a theoretical. You can read it. Clear? One thing that is important, that if you are using this key cryptography approach, so means that the sender and the receiver both must share the password before the communication to start. Or if the receiving point, some receiver is receiving the message or the text, it is not possible for him if he doesn't know the same password. Also, its name is the symmetry or symmetric key, because if we are sometime looking who is the originator, no one knows this, because every member in the communication has the same power of initiating a login and password based text. For example, if I know the password, I know the algorithm, I can encrypt a document and can send to anyone, and any of the person in the communication can use the same password and the algorithm and convert the plain text to the ciphertext, and so the parties are at the same page, are at the same level. So there is a symmetry among all the members in the communication. So one big problem is with this approach, that how the password to be shared, because we say that the text that has been encrypted will be sent, and if someone in the middle will get it, will not be able to read it. So you are clear that this is safe. But a man to whom you are not met any time, or you wish to share a password to him, how can you then send it? Can someone tell me कैसे हम इसको सेंड कर सकते हैं? कोई बता सकता है? जी, कैसे हम एक पासवर्ड को शेयर कर सकते हैं? जी, anyone from जी, एक मिनट. नहीं, अल्गोरिथम के ज़रिए से तो सही है, वो बात तो आपकी मुझे बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन वो अल्गोरिथम अगर आप उसको भेजोगे ना, तो वो भी तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा. अब वो पासवर्ड आपने उसको दिया तो कैसे दोगे? अच्छा, सो इफ यू से द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक. अब देखिए, मैं आपको पासवर्ड सेंड करता हूँ, तो मैं आपको कैसे सेंड करूँगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 12 पर्सन जो है कनेक्टेड है. कितने लोग हैं? 12 बंदे, ठीक है ना. अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह दूँ कि किसी भी बंदे के साथ मैं पासवर्ड को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है. तो अब मुझे आप बता दें कि एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैं कैसे शेयर करूँगा? नहीं, अब जाहिर है कि जो अटैकर होगा ना, वो तो कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर अटैक करेगा. तो अगर मेरा प्लेन टेक्स्ट वो गेट कर सकता है, सॉरी, एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट,
تو یہ جو پلین ٹیکسٹ پاسورڈ ہوگا یہ بھی وہ گیٹ کر لے گا، اور ہماری تو تمام سیکیورٹی پر کمپرومائز ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو کوئی بندہ کہتے کہ واٹس ایپ کے تھرو بھیجے گا، تو یہ تو آج کے دور کی بات ہے۔ اب اگر اس کے پاس واٹس ایپ ہی نہ ہو تو اس کے اوپر مختلف طرح کے پھر اپروچز تھے کہ ہم پاسورڈ کو شیئر کیسے کریں گے۔ تو ایک جو آپ نے کہہ دیا ایڈمنسٹریٹر کے تھرو کر لیں گے، واٹس ایپ کے تھرو کر لیں گے، یا فار ایگزامپل اس میں کچھ موویز ہے، اس میں کولمبیا کوئین کی ایک مووی ہے، اس میں ایک ٹیکنیک انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انڈین ایک مووی ہے ایجنٹ ونود، تو اس میں اس نے ایک ٹیکنیک بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پاسورڈ کو شیئر کرنا ہے۔ پھر ایک اور جو ہے نیٹ فلکس کے اوپر ایک پورا سیریز ہے سیکرڈ گیمز، تو سیکرڈ گیمز میں پھر ایک طریقہ انہوں نے بتایا کہ جس کے ذریعے سے یہ آپس میں پاسورڈ کو شیئر کر سکتے ہیں، بٹ آف کورس اٹ از اے پرابلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کون سا ٹیکنیک، وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کون سا ٹیکنیک؟ تو مطلب یہ ہے نا کہ ایشو ہے نا، آپ ٹیکنیک یوز کریں گے تو ظاہر میں تو کہ 2+2=4 بھی ایک ٹیکنیک ہے، تو یہ تو اب کیا ادھر اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹیکنیک تو میں دنیا جہان کے ہیں تو ٹیکنیک ہے، لیکن ٹیکنیک کون سا ہے، دس از دا کوشچن۔ مثلا دیکھیں میں ایک آپ کو میں نے بتا دیا کہ واٹس ایپ کے تھرو آپ سینڈ کر دو، تو یہ ایک ٹیکنیک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جی تو کبوتر کے ذریعے سے پاسورڈ بندہ بھیجے تو کبوتر کے ذریعے سے میسج کیوں نہیں بھیجتا، ایکچوئل میسج کہ خواہ مخواہ پاسورڈ اسے بھیجے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ دس از دا پرابلم۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے کہ اگر کبوتر کے ذریعے سے بھی آپ نے بھیجا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے کہ جو بیچ میں انٹرسیپٹر ہے تو وہ اس کبوتر کو پکڑ کے اس کے ساتھ پاسورڈ کنیکٹڈ ہوگا، تو پاسورڈ اتار کے وہ ریڈ کر لے گا، ٹھیک۔ سو اسٹل جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی، وہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے اس میں بھی اس نے مختلف ٹیکنیکس کو وہ کیا ہے نا، لیکن اس کے اوپر جو ہے کافی سارے ہالی ووڈ کی اور کلاسیکل موویز بھی اس کے اوپر اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے سے یہ پاسورڈ کو بہرحال شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون انڈین موویز ہے، نیٹ فلکس کی وہ ویب سیریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب لیکن دیز آر دا اپروچز، ٹھیک۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ کمپیوٹر کے اندر اب ہم کیسے کریں گے، تو اسٹل اٹ از دا پرابلم، ٹھیک ہے نا۔ اینی ہاؤ لیٹس سی، اچھا یہ کچھ الگوریدمس ہیں، وہی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں تو انکرپشن اور ڈیکرپشن اور یہ وہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ ایڈوانٹیج کے فاسٹ اینڈ سافر ٹیکسٹ از سیکیور، تو یہ ہے، لیکن ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ پاسورڈ کو آپس میں شیئر کیسے کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر اس گروپ میں آپ دیکھیں نا، تو اگر 12 بندے ہیں اور میں ایک بندے کے ساتھ پاسورڈ کو شیئر کروں گا، پھر دوسرے کے ساتھ دوسرا پاسورڈ، تیسرے کے ساتھ تیسرا پاسورڈ، تو اب مجھے 12 پاسورڈ یاد کرنے ہوں گے، ٹھیک۔ پھر اگر آپ آپس میں سیکیور کمیونیکیشن کریں گے تو ہر ایک 12 پاسورڈز کو
याद रखेगा, मेमोराइज करेगा। तो हमें अपना पासवर्ड याद नहीं होता तो हमें दूसरों के 12 पासवर्ड के याद होंगे। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा, लेकिन वो पासवर्ड जब आपको मिलता है ना तो वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होगा ना। अच्छा अच्छा, अब अगर एक अटैकर है ना और उसने आपके इस ईमेल को इंटरसेप्ट कर दिया तो उसके पास ये पासवर्ड आ जाएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। ठीक है ना। बहरहाल ये एक तरीका हो सकता है, जिस तरह मैंने कई तरीके आपको बता दिए तो इस तरीके से एक ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बहरहाल लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं, बट these are having the serious issues related to the future। हाँ, ये एक है कि फर्स्ट आपने पासवर्ड दिया, अप्लाई किया कनेक्ट करने के लिए, फिर द पासवर्ड मस्ट बी चेंज एट द फर्स्ट लॉगिन। तो हम नॉर्मली जो LMS है तो इसके ऊपर भी हमने ये तरीका अप्लाई किया हुआ है कि हम आपके साथ पासवर्ड्स को शेयर कर देते, नॉर्मली नकाश करता है। ठीक, फिर जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे सबसे पहले पासवर्ड चेंज मांगता है कि आपने पासवर्ड को ज़रूर चेंज करना है। ठीक है ना। तो ये मतलब बहरहाल एक अप्रोच है। ठीक, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक चैट सिस्टम है कि जहाँ पर 15-16 बंदे हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग आपस में सिक्योर चैटिंग को कैसे इंश्योर करेंगे। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ प्रॉब्लम। बात समझ आ गई। अब देखिए इसके ऊपर अटैक्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह से जो हमने डिस्कस की थी, नॉन प्लेन टेक्स्ट, चूजर प्लेन टेक्स्ट, डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस, लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस। लेकिन बहरहाल चूंकि एडवांस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं तो मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर थ्योरेटिकल। ठीक, लेकिन ऑफ कोर्स के देयर इज द थ्रेट। मोस्टली जो थ्रेट है वो किस बेस के ऊपर है कि कोई भी बंदा आपके इस पासवर्ड को रीड आउट कर ले इससे पहले कि आपने इसको रीड आउट किया हुआ हो। दिस। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो एक एक्टिविटी मैंने आपको दी हुई है, फाइंड आउट द क्रिप्ट एनालिसिस टेक्निक्स बाय विच यू कैन क्रैक द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। योर वर्डिंग मस्ट बी सपोर्टेड बाय वन रिसर्च पेपर। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको LMS के ऊपर डाल देता हूँ। सही है। जी हाँ, नहीं, आवाज आपकी कट रही है, जरा क्लियर जरा बोले। नहीं, एक्चुअली ये जो आप कहते हैं ना स्टेट लेवल के ऊपर, तो अब ये जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ना, दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस जिसको नॉर्मली हम हॉटलाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको?
हॉटलाइंस। हॉटलाइन में होता ये है कि आपके पास स्पेशल नेटवर्क होता है कि जब स्टेट लेवल के जो नॉमिनल्स है, जब वो इस कम्युनिकेशन को एंडोर्स करते हैं। बात की समझ आ गई? तो वो ऐसे गिटे घिसे पिटे तरीकों के साथ वो कभी भी नहीं करेंगे। ये आप अपने जहन में रखें, ठीक है ना? तो वो हॉटलाइन जो है वो क्या तरीका अडॉप्ट करता है, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बात समझ आ गई कि नहीं? लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि जिस तरह आपके एक दूसरे कोलीग ने भी कह दिया कि हम नादरा में इस तरीके से करते हैं, तो DBMS हो गए, MS वर्ड हो गया, स्टिल इसमें सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का जो अप्रोच है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये एज असाइनमेंट में यहाँ पर आपके सामने डाल देता हूँ ताकि थोड़े से आपके अगर कोई स्टूडेंट्स है और रिसर्च माइंडसेट उनका है तो वो भी इसको साथ साथ में देखें, ठीक है ना? तो मैं इसको देता हूँ क्विज नंबर 1। ठीक, टाइम खैर है, मैं इसमें ओपन दे देता हूँ, ठीक है? जब भी आप चाहे तो इसको वो करें, ठीक है? ये 17 के बजाय ये मैंने 13 कर दिया, ठीक। और यहाँ पर कट ऑफ डेट जो है 10 के बजाय 14 मैंने कर दिया, ठीक। तो थोड़ा सा आप इस पर देख लें कि कौन सा रिसर्च बेटरली वर्केबल है अपॉन द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कि इसको हम एनालाइज कर सकें। तो मुख्तलिफ अप्रोचेस है, आप इसको देख लें फिर, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, स्लाइड्स मैंने आपको भेज दी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आपको एज एन असाइनमेंट दे, लेकिन बहरहाल आप जो है इसको साथ साथ में देखते रहें, ठीक है? कि अगर कोई बंदा MS बाय रिसर्च करना चाहता है तो जाहिर है कि इसके एडवांटेजेस हैं और आप लोगों को ही इसका फ़ायदा होना है, ठीक है ना? तो बेहतर है कि ये जो एक्टिविटीज़ है साथ साथ में आप इसको भी करें। समझ आ गई कि नहीं? मैं इसका साइज जो है क्या करूं? Now let's proceed further. नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है अप्रोच, दैट इज द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो प्रीवियस जो हमारी इन कैंपस क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंसान की तख्लीक के साथ ही क्रिप्टोग्राफी ने जन्म लिया, ठीक। और जंगों के दिनों में अगर कंप्यूटर नहीं भी था तो सीक्रेट मैसेजिंग तो होती थी, ठीक। और अगर हम उसको क्लासिकल और शेक्सपियर के नावल्स में देख लें तो रोमियो और जूलियट भी ऐसा करते रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अप्रोचेस तो हैं, ठीक है। और उन्हीं से फिर हमने इनको इवॉल्व किया। अब द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज द नोवेलिटी और द इनोवेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। नो इन दिस, अच्छा सिमेट्रिक में हमने क्या कहा, कितनी कीज यूज होती है? 1 की। सिमेट्रिक में द सेम की ऑन बोथ साइड। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में यस, 2 डिफरेंट कीज आर यूज्ड। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? 2 डिफरेंट कीज आर यूज्ड।
वन फॉर इंक्रिप्शन एंड अदर फॉर डिक्रिप्शन। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि रिकॉर्डिंग को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो